our nuclear physics lectures, and I think yesterday we have completed about the range and straggling of the charged particles. Now today we will see the our another one topic, that is the photoelectric effects. I think this photoelectric effect you have already done in the standard 12 as well as in our graduate level syllabus. But why these photoelectric effects are included in our postgraduate level? Because in previous years, that means in that graduate as well as the 12 syllabus, they just told you about the photon as well as the use of the solar energies. Now here, with the help of radioactive elements, how it can be work? No, nothing but the principle are same. Both the principles are same, as well as the working of that photoelectric effect is the same. But here we are see at a different purposes. Here we see related with the gamma rays. I think I already told you about the charged particles, that is the radioactive elements are emits alpha, beta and gamma rays. So here first of all we just recall about our the definitions as well as the famous equation of the photoelectric effect, that is Einstein photoelectric effects. So first of all I would like to say here, whenever the photons are collides to any kinds of the atoms, any atoms which are used for the study related with the photoelectrons effect, that atoms, when the photons are collides on that atoms, it gives the lots of kinetic energy to that electrons. That means it may imping upon the orbital of electrons, because electrons are revolving around the nucleus in a particular orbits, and you know very well the different kinds of the shell was there, subshell was there, that is nothing but the K, L, M, such like that. We already studied in the chemistry levels. So what I say here, when the photon collides with an atom, it may imping upon an orbital electron, and they transfer all kinds of their energy to that electrons. They transfer all kinds of, that is the kinetic energy, whatever this energy they passes through that electrons which is revolving around the nucleus, and due to that energy the electrons gives the energy, taking the energy from that photons, and it is nothing but the eject from that orbit. Obviously whenever these are ejecting from that particular orbit, that means it is ejecting from that atoms. So what happens at that time when the incident photon energy, what is the photon energy? It is nothing but the h nu. It is the photon energy. When the incident photon energy, this one exceeds the electronic binding energy. What I say? It exceeds the electronic binding energy, or it is also called as the ionization energy, which is denoted by EB. It is called as the E energy, which is related with the binding energy. The electron ejected with kinetic energy. And the equation simply written as E kinetic energy is nothing but the h nu minus Eb. It is nothing but the equation number 1. It is equation number
one. And this phenomenon is called as the photoelectric effect. And these equations, what equations? E kinetic energy is equal to h nu minus Eb. This equation is nothing but the famous Einstein's photoelectric equation. And one thing you remember here, the electrons, which is ejected from the atoms, the electrons ejected from the atoms, it is called as the photoelectrons. It is called as the photoelectrons. It is nothing but the just recap over the photoelectron effect we have already studied. We have already studied. Once again, what I say, देखो अब थोड़ा सा इसको और इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं. क्या होता है जब ये फोटॉन्स है, फोटॉन क्या करते हैं, मानो पकड़ लो ये एटम्स है और ये फोटॉन्स है. ये फोटॉन्स क्या हो रहा है, इस एटम्स के ऊपर कोलाइड्स हो रहा है. दीज आर कोलाइड्स. कोलाइड्स होने के बाद क्या करेगा, इसके ऑर्बिटल्स के अंदर, ये एटम्स के ऑर्बिटल्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन क्या करेगा, खुद की एनर्जी दे देगा. ये फोटोन क्या करेगा, इसको आके जब इसके ऊपर बम्बार्ड होगा, धक्का देगा इसको आके विद द फोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करेगा, ये इसकी जो भी एनर्जी, वो एनर्जी क्या करेगा, ये एटम्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, उसको दे देगा. और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे. और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जेटिक होते हैं तो हमें पता है क्या होते हैं, दीज आर इजेक्टिंग फ्रॉम द एटम्स. वो एटम्स के बाहर आ जाते हैं. एटम्स के क्या आ जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं. बट ऐसा कब होगा, जब ये व्हेन द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, कौन सी बताई थी मैंने, दैट इज एच न्यू. कौन सी वाली, एच न्यू. ये जो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी है एच न्यू, अगर ये एक्सीड्स होती है, किससे एक्सीड्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी से. किससे एक्सीड्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी से. अगर वो एक्सीड्स होती है तो इस केस में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा विद द काइनेटिक एनर्जी. और इसी को हमने इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा था. क्या था इक्वेशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. कौन से वाली, ये वाली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू माइनस ई बी. और इसको क्या कहा था हमने, इक्वेशन नंबर 1 कहा था. ठीक है. अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है, इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. इसको क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और इस इक्वेशंस को आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है. तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. और पार्टिसिपेट करने के बाद क्या होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिलने के बाद वो इजेक्ट हो जाते हैं. कहां से, वो एटम से. दैट इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रॉन. नाउ अब बोलोगे कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हर एक के साथ होती है क्या, नहीं. इट इज एक्सेप्ट फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ लो जेड. जो एटॉमिक नंबर्स है जेड, उनका अगर एब्सॉर्प्शन लो होगा, लो वाले जेड है, लो वाले जेड है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, इन केस ऑफ दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स आर नॉट हैपन्स. दिस इफेक्ट इज द प्रीडोमिनेंट. किसके लिए प्रीडोमिनेंट है, जो कि गामा रेज के साथ इंटरैक्शंस करते हैं और उनकी जो एनर्जी है, दीज एनर्जी बिलो दी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके नीचे वाले बिलो दी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड फिर ये प्रोसेस होती है तो हमें एक बात समझ में आती है, जो भी एब्सॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का,
जो भी एब्सॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का, ये कैसा हो रहा है? रैपिडली हो रहा है। मगर ये रैपिडली किसके साथ हो रहा है? जो एटम्स बाइंडिंग ज्यादा है, टाइट बाइंडिंग है, जो इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग कैसी है, वो ऑर्बिटल के साथ बहुत टाइट है, उसके अंदर क्या हो रहा है? ये जो एब्सॉर्प्शन है, ये एब्सॉर्प्शन रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा कहां पे दिखाई देता है? ऐसा हमें दिखाई देता है के शेल के अंदर। कहां दिखाई देता है? के शेल के अंदर। सर ये शेल्स क्या होते हैं? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी। ये मानो कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अराउंड्स लाइक दैट, इसके अराउंड्स ये ऑर्बिट्स होते हैं, और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये ऑर्बिट्स को हमने एक शेल के रूप में नाम दिया गया है, और इसको हम अलग अलग शेल्स बोलते हैं। बाद में उसके सब शेल्स भी आ जाते हैं। इट इज़ नॉट कंप्लीटेड, सी हियर्स, जस्ट आई वुड लाइक टू से हियर दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स का एक रेशो होता है 1p 2p, वो आप लोगों को पता है। SPDF क्या क्या फॉर्म होता है वो पता है आप लोगों को। यहाँ पे मैं यहाँ पे इतना डिटेल्स नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब जो देखो ये वाला जो शेल बोल रहा हूँ मैं, ये वाला शेल, ये वाला, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी जो फोटोन एनर्जी है, ये वाले की कैसी होगी? ज़्यादा बाइंडिंग कैसी होगी इसकी? ज़्यादा ये ऑब्जॉर्व करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग इसके साथ कैसी है? ज़्यादा से ज़्यादा है। सो गाइस सिंपली ये हो गया कि एब्जॉर्प्शन किसके साथ कितना हो रहा है। अब ये जो के शेल मैं बोल रहा हूं, ये के शेल जो मैंने यहां पे बताया था, इट इज एब्सॉर्ब नियरली 80% ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, ये कितने परसेंट तक एब्सॉर्ब करता है? 80% तक की एब्सॉर्ब करता है। बट कब करेगा ये? जब फोटोन की एनर्जी ये कितनी होनी चाहिए? इट इज ग्रेटर देन EB ऑफ दैट के शेल। EB ऑफ दैट के शेल। व्हाट इज द EB? इट इज बाइंडिंग एनर्जी। के शेल के अंदर के का जो बाइंडिंग एनर्जी है, उससे आपकी फोटोन एनर्जी कैसी चाहिए? ज्यादा चाहिए। अगर फोटोन एनर्जी कम होगी तो वो आएगा क्या अंदर? अंदर तक नहीं आएगा। सिंपल चीज है ये। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, अब बाइंडिंग एनर्जी बार बार आ रहा है, लेकिन एक बात यहां पे कान खोल के सुन लो जो भूलनी नहीं है। कौन सी वाली? कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी, दिस बाइंडिंग एनर्जी not only depend upon the value of Z. This binding energy not only depend upon the value of Z, but also the orbital of electron shell. सिर्फ ये Z के ऊपर अवेलेबल है क्या? नहीं है। किसके ऊपर अवेलेबल है? उसके बराबर ये जो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स है, उसके ऊपर भी ये इंपॉर्टेंट है। सो इट इज नथिंग बट दी सेज दैट कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा आउटर शेल है, आउटर शेल, नॉट द के शेल, इनर शेल, सब शेल्स, वो नहीं, मैं जो बोल रहा हूं आउटर शेल्स है, वो आउटर शेल्स की वैल्यू क्या होती है? यहां पे डिक्रीज होती है। और वो हमें बताया गया है एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन। किससे बताया गया है? हमें एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन बताया गया है। ये रहने देता हूं मैं, रिकैप के लिए जाएगा। किसके रिलेटेड बताया गया है? एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन बताया गया है। अब रिलेशन किसका बताया गया है? रिलेशन बताया गया है हमें अलग अलग शेल्स का। क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि अकॉर्डिंग टू दैट शेल इट विल बी डिक्रीजेस, इट विल बी डिक्रीजेस। सो सिंपली क्या है? सबसे पहले देखते हैं, दैट इज दी नथिंग बट द EB के बाइंडिंग एनर्जी। किसके रिलेटेड? के शेल के रिलेटेड। क्या आ रही है? इट इज नथिंग बट दी RY इन ब्रैकेट Z माइनस 1 स्क्वायर। ये हो गया के शेल का। ये क्या हो गया? के शेल का। दूसरा वाला देखो, E बाइंडिंग एनर्जी। के बाद कौन सा शेल आता है? के बाद आता है L शेल। कौन सा शेल आता है? L शेल। ये आ रहा है आपका 1/4 ऑफ RY। RY क्या है मैं आपको बता दूंगा, 2 मिनट दीजिए।
आर वाई इन ब्रैकेट जेड माइनस फाइव स्क्वायर, ये हो गया एल का। अब इसके सबशेल्स वगैरह है वो उतना अंदर हमें नहीं जाना है। और लास्ट वन है हमारा ई बी एम, एम शेल का है, वो क्या है, दैट इज 1/9 ऑफ आर वाई इन ब्रैकेट जेड माइनस 13 स्क्वायर। देखो वैल्यू देखो चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर वक्त डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर इट इज द डिक्रीजेस, इट इज द डिक्रीजेस। सो व्हाट इज द आर वाई, व्हाट इज द आर वाई, देखो यहां पे दिख रहा है क्या, देखो अब आर वाई क्या है हमारा, आर वाई सिंपल है, आर वाई आता है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट, आर वाई क्या है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट दी क्या है वैल्यू, अरे पता चाहिए, नेट सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, 13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। सो अब ये हो गया सिंपली। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, अलग अलग ऑर्बिट्स के रिलेटेड, ऑर्बिट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स सिंपल वन थिंग वी नो हियर विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, what this thing is nothing but the electron in the higher energy state in an atom is more loosely bound, is more loosely bound। higher orbit में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, हायर ऑर्बिटल स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ कैसे हैं, लूजली बाउंडेड है। तो फिर अब ये सब हो गया, तो अगर हम इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे अलग अलग शेल की पकड़ के, अलग अलग शेल की पकड़ के जब हम इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तब हमें एक फार्मूला याद आता है जो कि हमने सीएमपी में पढ़ा था। कौन सा था, सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। तो ये सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसकी जब टोटल एनर्जी निकालेंगे, किसकी, ये बाइंडिंग एनर्जी की टोटल वैल्यू जब हम काउंट करेंगे तो ये आएगी नथिंग बट दी 15.73 इंटू जेड रेस टू, देखो क्या कह रहा हूं मैं, 15.73 इंटू जेड आ रहा है, फिर से एटॉमिक नंबर आ रहा है, दैट मीन्स दीज आर मोस्ट वैल्यूएबल, z इंटू 7⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इक्वेशन ये हो गया आपका नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब सिंपल, अब ये हो गया आपकी बाइंडिंग एनर्जी के रिलेटेड हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स जो फॉर दैट क्या कहेंगे उसको हम, लीनियरली पोलराइज्ड हो रहे हैं, कब, जब इंसिडेंट ऑफ फोटॉन्स हो रहे हैं तब। मैंने क्या किया, फिर से क्या लेना है अब, द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर द लीनियरली पोलराइज्ड इंसिडेंट फोटॉन, और उसका इक्वेशन हमें दिया गया है। बच्चों ये पहले लिख लो या इसका सिंपल स्क्रीनशॉट है निकाल लो, ठीक है। देखो दिस इज नॉट ओनली फॉर दैट अवर MSc स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर द नेट, JRF, सेट एस्पायरेंट्स। सो गाइज बी केयरफुली, सिर्फ MSc के मेरे स्टूडेंट्स नहीं देख रहे इस वीडियो को, ये वीडियो हम हमारे दूसरे चैनल पे भी इंक्लूड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइज नेक्स्ट देखो क्या है, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या करना है हमको, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। किस चीज का एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, फोटॉन्स का। किस चीज का, फोटॉन्स का एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, सॉरी फोटॉन्स का नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है फॉर द लीनियरली पोलराइज्ड इंसिडेंट फोटॉन, जो भी लीनियरली इंसिडेंट फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। और उसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है, दैट इज dn इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो हर एक की यहां पे कुछ ना कुछ तो भी वैल्यू है, इन ब्रैकेट 1 माइनस बीटा कॉस थीटा, ये बीटा है, प्रॉपरली देख लो, ये बीटा है,
raised to -4 cos square phi, that is d ओम, बोलो इसको, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। हो गया। अब देखो इसके अंदर, अब ये जो dn है, ये वाली वैल्यू, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन द स्मॉल एंगल। ये स्मॉल एंगल के अंदर जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होंगी, इसकी ये क्या है, वैल्यू है। और इसने क्या एक एंगल बनाया हुआ है, कौन सा एंगल बनाया इसने, एक थीटा नाम का एंगल बनाया हुआ है। उसके बाद सेकंड वन थिंग्स दैट इज द फाई। दूसरा क्या आ रहा है बच्चों, फाई आ रहा है। फाई क्या है, फाई तो सिंपल है सर, एंगल होता है। हाँ बाबा बराबर है, ये एंगल होता है, लेकिन किस चीज का एंगल है, इट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द रिएक्शन प्लेन। अब एक रिएक्शन प्लेन भी निकालेंगे, चलो इसको बाद यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, बाद में एक यहाँ पे उतार देंगे हम लोग, बाद में इसको एक्सप्लेन बहुत डिटेल में करूंगा मैं। सो रिएक्शन प्लेन एंड द पोलराइजेशन प्लेन। रिएक्शन प्लेन और पोलराइजेशन प्लेन का ये क्या है, ये हमें एंगल डिनोट करता है, ठीक है। अब ये किसका हो रहा है, ये हो रहा है इंसिडेंट ऑफ फोटॉन्स का। किसकी वजह से हो रहा है ये, इंसिडेंट ऑफ फोटॉन्स की वजह से। और उसके बाद एक वैल्यू बचती है हमारे पास, दैट इज बीटा। बीटा इट इज नथिंग बट दी, देखो वैल्यू इसकी, दैट इज नथिंग बट दी VE डिवाइडेड बाय C, VE डिवाइडेड बाय C। सो इट इज ऑल अबाउट दी इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है ये हमारा, ये इक्वेशन है हमारा सिंपल एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, या उसको इलेक्ट्रॉन्स ही बोल दो। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे तो कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं एटम से, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसलिए कुछ मायने नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स बोलो या फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलो, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसके वजह से, दैट इज लीनियरली पोलराइज्ड इंसिडेंट फोटोन की वजह से। तो ये इक्वेशंस हम लोगों ने यहां पे देख लिया। अब क्या है, अब देखो सिंपल एक पॉइंट आएगा इसके बाद, क्या कौन सा वाला पॉइंट आएगा, कि ये जो लो गैमा रेज है, लो एनर्जीज वाले गैमा रेज, बराबर है, ये लो गैमा रेज वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे, दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड प्रीडोमिनेंटली इन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, इन द डायरेक्शंस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक वेक्टर। अब देखो ये प्लेन आएगा, ये प्लेन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट का जो भी कुछ प्लेन बना है, और अकॉर्डिंग टू दी एंगल्स कि ये क्या होगा, कैसा होगा। अब ये प्लेन हम लोगों ने निकाला यहां पे, ठीक है। अब देखो ये फोटॉन्स ऐसे आ रहे हैं हमारे यहां से, ये फोटॉन्स आ रहे हैं, ये फोटॉन्स आ रहे हैं यहां से। अब ये फोटॉन्स आएंगे, और ये जो है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग पहलू है, ये वाले देखो, ये वाले, बराबर है। अब क्या होगा, ये जो है हमारा प्लेन का ये ई वाला पोर्शन, ये कौन सा वाला पोर्शन है, ई वाला पोर्शन है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन वेक्टर, इलेक्ट्रॉन वेक्टर। अब क्या होगा, एज द फोटोन एनर्जी इंक्रीजेस, देखो एज द फोटोन एनर्जी इंक्रीजेस द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन होगा, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस होगा। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशंस होगा, उसके वजह से ये क्या करेगा, ये उसके डायरेक्शन की ओर डिस्प्लेस्ड होगा। देखो ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन की ओर ये क्या होगा, ऐसा डिस्प्लेस होगा। बोले तो ये यहां से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका स्टार्ट हो जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, टू दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या कहां हो रहा है, टू दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। So that this diagram just shows you the positions of peak shift, position of peak shift to lower angle as the electron velocity, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे हो रही है, उसका एक सिंपल पीक शिफ्ट बता रहा है वो हमें।
क्या बता रहा है? एक पीक शिफ्ट बता रहा है। सिंपल। क्यों? क्योंकि फोटोन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। फोटोन एनर्जी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स क्या होगा? क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी इंक्रीज हो जाएगी। सो अब देखो, ये हो गया यहां तक हमारा। अब क्या होगा? अब जब इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस करना चालू हो गया, जब इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस करना चालू हो गया, तब जो फोटो इलेक्ट्रिक क्रॉस सेक्शन था, जो फोटो इलेक्ट्रिक क्या था? क्रॉस सेक्शन था, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। वो बहुत ज्यादा क्या होने लगा? कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। और उसके बाद वेरियस थ्योरेटिकल्स मेथड का सर्वे लिया गया। क्या कह रहा हूं मैं? वेरियस थ्योरेटिकल मेथड का क्या लिया गया? सर्वे लेने गया और उसके अकॉर्डिंग कुछ अप्रोक्सीमेशन निकाले गए, और वो अप्रोक्सीमेशन निकाला गया किसकी ओर से? दैट इज बाय द R.H. प्रैट। दैट इज R.H. प्रैट की ओर से। R.H. प्रैट की ओर से क्या निकाला गया? एक अप्रोक्सीमेशंस निकाले गए, एंड उन्होंने क्या बताया कि जो भी एब्सॉर्प्शन है, जो भी एब्सॉर्प्शन कर्व है आपका, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। कितने रीजन्स के अंदर ये डिवाइड हो रहा है आपका? 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। पहला, दैट इज द विसिनिटी यानी क्या होता है? विसिनिटी यानी टू सराउंडेड, उसके आसपास के फोटोन, इलेक्ट्रॉन्स के आसपास की जो भी फोटॉन्स होगी, या फोटॉन्स जब आएंगे तब फोटॉन्स के आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वाइस वर्सा समझ लो उसको। विसिनिटी फ्रॉम द एज। सेकंड वन उन्होंने बताया दैट इज अवे फ्रॉम द एज। और तीसरा बताया दैट इज रिलेटिविस्टिक रीजन। अब देखो बच्चों, ये बताया किसने बताया? R.H. प्रैट ने। तीनों उन्होंने डिवीजन किए, यहां पे 3 रीजन्स बताए। पहले रीजन्स में क्या बताया? जो आसपास है, किसके? एज के आसपास है, और उसकी वैल्यू उन्होंने दी है दैट इज दी लेस देन 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरे जो अवे फ्रॉम द एज है, जो उसकी एज है, ये ऐसी एज है, मानो ये ऐसी एज है, ये एज से दूर है, और उसकी वैल्यू दी इन्होंने दैट इज नथिंग बट दी ग्रेटर देन दी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड लास्ट वन दैट इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी। तो आपको पता है रिलेटिविस्टिक एनर्जी किसके रिलेटेड है? एच न्यू, फोटॉन्स के रिलेटेड है। अगर ये रिलेटिविस्टिक रीजन कब आएगा? जब ये आपकी जो फोटॉन एनर्जी है ये ग्रेटर होगी, दैट इज mc², दैट इज नथिंग बट दी mc², आइंस्टाइंस का ग्रेट इक्वेशन है। सो देखो, अब ये हो गया। चॉक पीस खत्म हो गई क्या? देखता 1 मिनट रुको। चलो, अब ये हो गया हमारा R.H. प्रैट की ओर से जो भी कुछ अप्रोक्सीमेशंस उन्होंने निकाला था थ्योरेटिकल मेथड्स के रिलेटेड, वो हो गया, जो कि 3 रीजन्स में दिया गया है। अब ये होने के बाद क्या है? जो एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी है ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन की। किसकी बोल रहा हूं मैं? आप फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शंस की। क्यों? क्योंकि आपको पता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाद में किस में कन्वर्ट करते हो आप लोग? इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हो। सो सिंपल। अब जो प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी है? फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन की, जो कि हमें डिस्क्राइब करनी है विद द हेल्प ऑफ अनदर वन इक्वेशंस। इट इज नथिंग बट दिस वन सिग्मा PE इंटू के, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक। किस कौन से शेल की करेंगे हम लोग? के शेल की करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन जो भी होगा वो सबसे ज्यादा कहां पे होगा? के शेल के पास होगा। तो सिंपल होगा, दैट इज द सिग्मा PE इंटू के। अब इसके अंदर क्या है कि जो भी टोटल फोटो इलेक्ट्रिक क्रॉस सेक्शन होगा, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक क्रॉस सेक्शन होगा, उस रीजन के अंदर तो जो के इलेक्ट्रॉन्स है, के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? वहां पे गैदर्ड होंगे, टुगेदर्स होंगे वहां पे,
एंड एक बॉर्न अप्रोक्सीमेशन हमें यूज करना है रिलेटेड ऑफ दैट, इट इज नथिंग बट दी 4√2 4 into √2 in a bracket m is c square divided by h nu. देखो दो इक्वेशंस, ये तो आपको पता है, h nu raised to 7/2 into alpha square z raised to 5, that is the sigma. ओके, देखो ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, सोच सोच के लिखना पड़ रहा है, इसलिए स्लोली लिख रहा हूं मैं. 4 into √2 in bracket m e c square divided by h nu raised to 7/2 alpha square z square th m divided by atom. That is equation number 3. कुछ मिसिंग है क्या? 4 रूल्स. हाँ चलो, ये m स्क्वायर है, that is the m स्क्वायर. तो इसके अंदर क्या है, ये जो अल्फा आता है आपका, अल्फा क्या है, दैट इज द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट रहता है आपका 1 divided by 137 एंड दैट इज द सिग्मा टीएच. मैंने यहां पे लिखा है, इट इज नथिंग बट द थॉमसन क्रॉस सेक्शन पर एटम, और ये कितना होता है, ये होता है 8/3 पाई r0 स्क्वायर. देखो 8/3, दैट मीन्स नथिंग बट दी 8/3, इट इज नथिंग बट दी 8/3. अब ये हो गया आपका बॉर्न अप्रोक्सीमेशंस, किसके रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक क्रॉस सेक्शंस के रिलेटेड. अब क्या होता है कि ये जो एब्सॉर्प्शन एजेस चल रहे हैं हमारे, जो अलग अलग जो पास है इन द नेबरहुड ऑफ द एब्सॉर्प्शन एज, it is necessary to use a more exact form of electron. क्या कह रहा हूं मैं, it is necessary to use more exact form of electron wave functions. It gives the correction function. एक correction functions आपको देंगे, it is nothing but the, क्या होगा correction functions, it is nothing but the f in bracket, sorry ये nu k divided by nu k minus nu raised to 1/2 raised to 1/2. So guys, it is all about the आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बराबर है. ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके अंदर कुछ रिलेटिविस्टिक रीजन्स भी है जो कि इसके रिलेटेड आ रहा है. आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट टू, क्या है, ये तो हो गया इसके रिलेटेड. अभी हमने करेक्शन भी देख लिया, इसका करेक्शन फंक्शंस भी देख लिया. अब इसके अंदर क्या है, अब अलग अलग पॉइंट है. देखो यहाँ पे कई बुक्स में एच न्यू क्यों आया है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट है. सो इसको इतना ही समझ लेते हैं. और इसके बाद क्या है, जो भी रीजन है हमारा, दैट इज रिलेटिविस्टिक रीजन, वो क्या है, विच इज नथिंग बट द एक्सपोनेंट ऑफ 7/2. देखो एक्सपोनेंट होता है यहां तक 7/2 तक, बट ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा. कब डिक्रीज होगा, जब आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी. जब आपकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. एंड ये कब डिक्रीज होगा, जब आपकी एनर्जी हाई की ओर जाएगी, वेरी वेरी हाई होते जाएंगी, तब तक क्या होगा, ये डिक्रीज होगा. तो ये इक्वेशन हम लोग सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आफ्टर दैट, आफ्टर इंक्रीजिंग दी हाई एनर्जी, इट इज नथिंग बट दी इज इक्वल टू 1.5 me c स्क्वायर डिवाइडेड बाय h न्यू. अब क्योंकि ये क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया, एंड इट इज नथिंग बट दी अल्फा स्क्वायर z, क्या सॉरी, ये z रेज टू 5 इंटू सिग्मा th. ये देखो ये क्या हो रहा है, सब एनर्जी हाई हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब इसका एक्सपोनेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और ये z⁵ जो है हमारा, इट इज डिपेंडेंस. ये क्या है, डिपेंडेंस है. किसके ऊपर डिपेंडेंस है, जो भी हमारी फोटोन एनर्जी है, जो भी हमारी फोटोन एनर्जी है, उस फोटोन एनर्जी के ऊपर ये डिपेंड करता है. क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि लो एब्सॉर्प्शन वाले Z का यहाँ पे कोई काम नहीं है, उसके अलावा दैट मीन्स दीज आर दी हेवी एब्सॉर्बर. इसलिए इसको यहाँ पे क्या बताया गया है, हमें डिपेंडेंट बताया गया है. अब देखो
इसके ऊपर और एक है, एक इंपेरिकल डाटा यूज किया गया, किसकी ओर से? देखो अब टॉपिक तकरीबन हमारा खत्म हो गया, आपने यहां तक भी लिख लिया तो आपका इक्वेशंस खत्म हो जाता है। हमारा प्रूफ था, क्या था कि जो भी करेक्शन से बॉर्न अप्रोक्सीमेशन तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होता है वो हम लोगों ने देख लिया यहां तक। तो इसके आगे क्या है, एक इंपेरिकल डेटा लिया गया, किसकी ओर से? इट इज नथिंग बट दी एनसी रासमुसन। देखो नाम थोड़ा सा अलग है, इनकी ओर से, इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूं एनसी की ओर से। एंड इनको क्या, इन्होंने क्या फाउंड किया? इट इज फाउंड दी एक्सपोनेंट ऑफ जेड। जेड का एक्सपोनेंट क्या होता है? वैरी होता है। ये जो जेड है इसका एक्सपोनेंट वैरी होता है, कहां से कहां तक? 0.4 से लेके 4.6 तक। इसका जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट वेरीज होगा, कहां से कहां तक? 0.4 से 4.6 तक विद एनर्जी, विद दी एनर्जी। और अब एनर्जी बोल दिए तो सर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ये वेरी होता होगा? हाँ जरूर होता है। कहां से कहां तक होता है? ये होता है 0. इसके नीचे लिखता हूं, ये होता है 0.1 से लेके 3 तक, 0.1 से लेके 3 तक। देखो बच्चों, ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो थोड़ा सा इक्वेशंस बड़े हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको हमारी ही लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरह से याद किया गया है और समझा गया है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बच्चों ध्यान में रखो, ये इक्वेशन ऑब्टेन किया गया है किसकी ओर से? हिटलर की ओर से एक्सप्लेन किया गया है, उन्होंने ही ये इक्वेशन लाया हुआ है। सो आई थिंक यू आर understood very well these photoelectric effect with the help of gamma rays. So guys, I hope you are enjoying this video. Thank you so much for your watching this video and have a nice day.